Right. So what's your good name? This T. Which school you're from? A Lotus Valley. Okay. Yeah. So can you tell me your marks in maths in pre-board of 10th? Oh, I got pre-board one में Dvish, 78.5. Dvisha, I'm talking to Diksha over here at the moment. Dvisha. Huh? Dipsha. Divsha. Okay. And you're Diksha. This you No. fine. You got 73 on? Okay, that's good. And what about you, I got Divsha? 80 in pre-board 2 and a 78.5 in pre-board 1. That's very good. 80 on 80. Wonderful. So hopefully you get 100 in maths in I'm getting boards. subject topper in my grade for maths. Very nice. So my introduction is that my name is Sanjay Bhatnagar. I'm BTech Mechanical from IIT Roorkee, and I take physics and maths, and I'll be teaching you maths over here. Which topic you have started as such? I've done tilt relations and functions. Okay. What about you? Okay. So which college your target at the moment? Hmm? Uh, SPA? Delhi. Yeah. Which SPA? Vijayawada? Bhopal? Delhi. Right. So we have a huge target, a big target, and we need to work hard for the same. And the route for J SP Delhi J paper 2, which is of 400 marks. You know the details of this? Out of 400 marks, 200 is aptitude. There'll be 50 MCQs. And you have +4 -1. That is, if you answer it correctly, you'll get 4 marks. If you answer it incorrectly, you will lose 1 mark. And let me tell you that if you lose 5 mark, your rank should by 1,000. So each question is so important in JEE. Then 100 marks is drawing. There'll be 2 questions. And then you have maths, which has 25 questions. Out of 25 questions, 20 will be MCQ and 5 would be integer type, where you don't have options, but you need to fill in the integers, whatever the answer is, that is you have to fill in. Earlier, there used to be 10 questions, and out of 10 questions, you have to answer any 5 questions. So choice was there, but now after the COVID, they started with the 10 questions, but before that, it was 5 questions only. And even in the integers, you have negative marking. So again, +4 -1. And anyone who is targeting SPA Delhi has to target 300 plus. So this is your target. How to reach there? Generally, student get around 180 to 200 marks in aptitude, right? And here you can score anywhere from 40 to 70 because drawing is something which is very subjective. You might feel that your drawing was very good and you draw very well and all that stuff, but then it depends on the examiner who is checking it, so it's very subjective. So sometimes quite unpredictable. We have seen over a period of time स्टूडेंट जिनके बहुत अच्छी ड्राइंग थी उनके कम मार्क्स हैं, जिनके बेकार थी उनके बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, तो ऐसा भी हो जाता है. दिस इज मैथ्स वेयर over a period of time, like if I talk about 2020 and before, if 100 was the syllabus for maths for CBSE or 11 12 board, I used to teach 40% extra because there used to be a lot of extra topics which were not taught in 11 12 class. But post COVID, what happened? This syllabus was reduced by 30%. It became 70%. And from the last year, they have rationalized the syllabus. What is rationalizing the syllabus? It means that whatever is the syllabus of 11 12 class, only on those syllabus question will be asked. So from the last year, your job has been pretty easy. That means
हमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं करना होगा सिलेबस के अलावा, लेकिन उसी सिलेबस में दिल बी क्वेश्चंस ऑफ हायर लेवल. So difficulty level would increase, but syllabus would be strictly, one question here and there could be out of syllabus also, but otherwise strictly whatever maths you will be studying in 11th 12th class वो सारा का सारा आने वाला है. तो यहाँ पे हमारा टारगेट रहेगा 40+ से लेके 100 मार्क्स. पहले like before 2020, if somebody getting 30 marks, I used to say it's a very good score, but the paper used to be really really tough. But nowadays, from the last 2 years, पेपर की का जो डिफिकल्टी लेवल थोड़ा कम हो गया है. सो दैट्स वाई 40+200 विल बी आवर टारगेट इन मैथ्स. अब जरा इसका टोटल करूं, लोअर मार्क्स का कितना हो रहा है ये? 260. 260 का मतलब है यू आर नॉट इन द लिस्ट फॉर एसपी दिल्ली और विजयवाड़ा और भोपाल. We are, we might get some NIT kind of thing. But if I add the, upper one, 100 is too much to ask. 80 ले लेते हैं यहाँ पे. 80, 70 एंड 200 अगर करते हैं तो कितना होता है? 350 का मतलब इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. योर रैंक वुड बी 1. योर परसेंटाइल वुड बी 100. ठीक है. तो डिपेंडिंग ऑन योर फोटे, लाइक एप्टीट्यूड तो सबको ही करना है बिकॉज दैट्स 50% मार्क्स. 2 साल में तुम्हारा एप्टीट्यूड बहुत अच्छा हो जाएगा. और सिंस as far as drawing is concerned, you'll be working hard for the next 2 years. And maths, mein, we have to, really, really work hard. I'll be telling you the basic concepts, then the MCQs, there's shortcuts also, because many questions you can answer by, just shortcut as well. Because MCQ mein kya hota hai? There are 4 choices. And even if you don't know the method, you can eliminate options. MCQ is basically eliminating the wrong ones. तो कई बार क्या होता है, by applying some kind of shortcuts, we can eliminate maybe 2 options. And if you can do this kind of thing, eliminating 2 options out of 4 options, you can always take a chance. Suppose हमने ऐसे 4 questions किए जिसमें कि हमने 2 option eliminate कर दिए थे, तो by simple law probability 50-50, 2 question तुम्हारे सही हो जाएंगे, उसमें +4 मिलेगा, that is 8. 2 question अगर गलत भी हो गए तो -2 हो जाएगा, that is 6 marks. 6 mark का मतलब है our rank is shifted by another 1000. So some calculated risk will also be, you'll be learning these tricks over a period of time when you write a number of tests, MCQ tests, वो सारा तुम सीखोगे. और जो भी टेस्ट यहाँ पे होंगे सारे MCQ होंगे, इवन दो आई टेक केयर ऑफ योर नॉर्मल स्कूल थिंग ऑल्सो व्हेन आई टीच समथिंग, because I'll go with the basics. Apart from the booklets you have received, I'll be giving some assignment also on each topic, but the test would be strictly MCQs. कुछ पूछना है? Any question you have as far as maths is concerned? No? क्या शुरू करना है? Which topic you want to start? Shall we start with complex number or maybe set relation function? सेट से कर लेते हैं. ओके. व्हाट इज अ सेट? ओके. दिव्या तुम बताओ, तुमने पढ़ लिया ना सेट्स? It is a well-defined collection of objects. ओके. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड? Like it is definite and does not change for people. Say if in a class I ask students, like a set of all good student in a class, will it be a set or not? Set of all good student in a class. मतलब there's an ambiguity now, because maybe you feel that you are not good but teacher feel you are good, so there's an ambiguity. So this kind of ambiguity should not be there. That is why we say that a set is well defined collection of object. Well defined का मतलब है some kind of characterizing property by virtue of which you can either eliminate, add, or you can't add a given object. लिख लो उसको, नोटबुक निकालो. सेट्स वाला देना.
यही चाहिए था मुझे। दिशा, मैं तुम्हें आई सेंड यू असाइनमेंट ऑन सेट्स, है ना, अभी ऑनलाइन करता हूँ मैं तुम्हें। लिखो, a set is well defined collection of objects. Well defined means, well defined means some characterizing property, some characterizing property by which, some characterizing property by which a given element, a given element can be included or excluded from the given set. So that is the meaning of the well defined, right? क्या लिखा दिव्या? A set is a well-defined collection of objects. Well-defined means some characterizing property by which a element can be included or excluded from the given set. परफेक्ट, ठीक है। तो अगर if I ask somebody in a classroom, I ask that how many of got you got 95% and above in class ninth. So there'll be some student who got 90% and above. Some would be below that. So I have a specific number of students. So 90% and above will be the well defined. ठीक है? There are two ways to represent a set. One is set builder form. Another one is roster form, tabular form, or listing method. लिख लो. A set can be represented by two ways. स्कूल में क्या शुरू हुआ है अभी? ओके. The school you're from? ओके. अच्छा, पास में जो है. Roster form, tabular form, or listing method. So we can represent a set by two ways. One is set builder form, and the second one is roster form. Now, normally a set is represented by alphabets, capital letters, A, B, C, D, till Z. So any set you want to represent, you basically represent by writing alphabets. So a set is well-defined collection of object. There are two ways to represent a set. One is set builder form, another one is roster form. Now, what is set builder form? Any idea? Likho. In a set builder form, in a set builder form, the set is represented by, the set is represented by writing some of its characterizing property. By writing some of its characterizing property. तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सेट को? बाय राइटिंग सम ऑफ इट्स कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी. I'll give an example. Suppose I write a set A, X such that X is a vowel.
ठीक है, तो मैंने आई हैव रिटन द कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ द सेट. व्हाट इज द कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी? दैट इज अ वॉवल. तो इमीडिएटली यू नो व्हाट इज द सेट. Set B, X such that X belongs to set of natural number. इस सिंबल का नाम बताओ क्या है ये? बोलो. हाँ बोल दो. एप्सिलॉन. स्पेलिंग क्या है इसका? EPSILON. यस, दिस you'll be studying in physics also. इट्स a Greek symbol. 12th में काम आएगा ये. Relative permittivity or permittivity of a medium. So X belongs to set of natural numbers and say n is less than equal to 5. So this is another way of writing some other set. So किसी भी set में अगर हम characterizing property लिखेंगे, then it will be another set X such that X square plus 1 is equal to 0. X belongs to set of real numbers. ये भी एक set है. Some another set I write D, X such that X belongs to whole number, X is less than 1. So when you write a set by writing some of its characterizing property, then it is called set builder form. मैथ्स के लिए एक मोटा सा नोटबुक बना लेना. So next year you'll be writing your entrance we are running in 2025, will be 2027, है ना? January 2027 पहला अटेम्प्ट वही होगा. If all goes well, because अभी तो वॉर चल रहा है, हो सकता है आगे भी शिफ्ट हो जाए. तो सेट बिल्डर फॉर्म समझ में आ गया. The second way of writing a set is roster form or tabular form or listing method. By the name you can know कि इसमें क्या हो रहा है. In a tabular form, roster form or listing method, हम क्या करेंगे? We'll be listing some or all the elements of the set. लिखो. In roster form, some or all the elements, some or all the elements of the set are written in the set. जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं. The moment I write this, तुम्हें क्या लग रहा है? क्या है ये? 1 2 3 4. हम्म नहीं, वो तो है, लिस्टिंग मेथड तो है, लेकिन है क्या ये? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स कहाँ से शुरू होता है? 1 से तो शुरू होता है. सो दिस इज रोस्टर मेथड. इफ आई राइट अनदर सेट से P 2 3 5 7 11, ये क्या है बताओ? प्राइम नंबर्स लेस और इक्वल टू 11 और प्राइम नंबर लेस देन 12, है ना? अगर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं. अगर मेरे को इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखूंगा मैं? सेट बिल्डर फॉर्म में ये हो जाएगा x such that x is a prime number and x is less than 12. तो 12 से जितने भी छोटे प्राइम नंबर है वो सारे इसमें आ रहे हैं. So we can always change set builder to roster form, roster to set builder form. Another set Q. AEIOU. ये क्या हुआ? किस चीज का सेट है ये? सेट ऑफ वॉवल्स, है ना? So roster form में you will be writing the elements separated by commas in the braces, whereas in the set builder form you write some कहानी about the set. जैसे
Look at this set A and this set Q. They are the same basically. अगर मैं सेट A को रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो क्या आएगा? X इज अ वॉवल, तो यही तो हो जाएगा। ठीक है। What about this? Can you convert this into इन दोनों को बताना मेरे को, कन्वर्ट करो, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखो। कन्वर्ट इनटू, हाँ बोलो। यू कैन ऑल्सो राइट इन चैट बॉक्स, वैसे बोल भी सकती हो, बिना सी हाथ उठाए भी बोल सकती हो, ठीक है। सी एम टी सेट हो जाएगा। कौन सा वाला? इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर -1 आएगा तो एक्स पॉसिबल। स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आएगा, दैट्स नॉट पॉसिबल एज फार एज रियल नंबर्स आर कंसर्न, है ना। रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड। अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू करते तो उसमें ये आ जाता है, इसे कॉम्प्लेक्स नंबर, इसे आयोटा बेसिकली विल बी स्टडिंग दिस इन कॉम्प्लेक्स नंबर, सिंस वी आर डीलिंग विद रियल नंबर्स, तो दिस विल नॉट बी देयर, मतलब इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। इस सेट में देयर इज नो एलिमेंट। जब कोई एलिमेंट नहीं हुआ तो उसको क्या बोलते हैं? नल सेट। दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट नल सेट, लिख लो। इन a null set you write braces without anything inside, और इस सिंबल का नाम क्या है? पाई। पाई, ठीक है, PHI, फाई। सो नल सेट डज नॉट हैव एनी एलिमेंट। लेकिन अगर तुमने फाई को इसमें लिख दिया इसके अंदर तो नल सेट नहीं होगा, ठीक है। इफ यू राइट फाई इनसाइड नल सेट इट वॉन्ट बी ए नल सेट। देखो, इफ आई राइट अनदर सेट Z which is like this, it is not a null set। इस सेट में एक एलिमेंट है, तो नल सेट या तो फाइल लिखाओगे, लिखोगे विदाउट ब्रेसेस और सिंपली द ब्रेसेस। अब थोड़ा रिकैप कर लेते हैं वापस से। सबसे पहले सेट, सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जिसमें देयर इज नो एम्बिग्यूटी दैट कि ये एलिमेंट सेट का पार्ट है या ये एलिमेंट सेट का पार्ट नहीं है। देयर शुड बी नो एम्बिग्यूटी, ठीक है। या तो वो एलिमेंट सेट का पार्ट होगा या नहीं होगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। सेट इज रिप्रेजेंट बाय टू वेज, वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखोगे तुम, सम स्टोरी अबाउट द सेट, ताकि उससे सेट बन जाए। दूसरा है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं? एलिमेंट्स को लिखेंगे, ठीक है। यू राइट सम एलिमेंट्स, और लाइक नेचुरल सेट में जैसे नेचुरल नंबर का सेट था, यू कांट राइट ऑल द एलिमेंट्स, है ना। तो वी हैव रिटन ओनली फ्यू एलिमेंट्स, हमें पता लग जाएगा इसका नेक्स्ट 5 आएगा, फिर 6 आएगा। और एल्स इफ यू नो ऑल द एलिमेंट्स यू कैन राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑल्सो। तो यहाँ तक हमने कर लिया है। अब जरा असाइनमेंट, दिशा 9 में मिल गया तुम्हें? असाइनमेंट मिला है? देखो ऑनलाइन, मैम ने भेजा हुआ शायद। नहीं, क्वेश्चन, हाँ। नहीं मिला। नहीं मिला? ओके। क्वेश्चन 1 2 3 4 5 करेंगे हम, 1 से लेके 4 तक कर पाएंगे अभी। अभी तुम्हारा ग्रुप बना नहीं ना, 2 ईयर का? स- ये अपना नंबर बताओ, मोबाइल नंबर। 928 1 मिनट। 9 2, 8 हाँ। 928 928 928 दो बार? ओके। 99 99 66। 66। 928 928 928 928 9966। कमाल का नंबर है तुम्हारा ये। करो, स्टार्ट करो क्वेश्चन नंबर 1 से, नोटबुक में करो। जो नहीं होगा वो यू आस्क मी, ठीक है। एनी डाउट यू हैव यू आस्क मी, ठीक है, विदाउट एनी प्रॉब्लम। यू कैन आस्क मी वन। अगर तुम्हें लगता है 2 + 2 4 नहीं है, हम वो भी डिस्कस कर सकते हैं, नो इश्यू, बट शुड आस्क मी योर डाउट्स।
आ गया दिशा? हाँ हाँ। ठीक है, 1 to 4 करना है सारे क्वेश्चंस। आराम से, दिस नो हरी, जो नहीं आएगा मेरे से पूछ लेना। तो बोलो, तुमने क्या शुरू किया? ट्रिगो? ट्रिगो स्कूल में क्या शुरू हुआ है अभी मैथ्स में? ट्रिगो, अच्छा ठीक है। और टेस्ट है कोई अभी? हम्म। कब है? अच्छा, कुछ डाउट है तो मेरे से पूछ लेना फिर, है ना? ठीक है। और मैथ्स में कितने मार्क्स है तुम्हारे प्री बोर्ड में, 10th में? ठीक है, तो अच्छे आएंगे, उससे तो बेटर ही आएंगे बोर्ड में तो। गुड। का ओके। यू केम हियर लास्ट टू लास्ट ईयर, मुझे याद आ रहा है। नहीं? हम्म। हाँ, यू कैन डू, चलेगा। पहला वाला हो गया सभी का? हम्म। अद्विक का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया पूरा? करो, कुछ कुछ पूछना है इसमें, कोई डाउट है? कोई एग्जाम है स्कूल में? स्कूल में कोई एग्जाम है अभी? टेस्ट? अच्छा, मार्क्स क्या थे मैथ्स में? सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म को तुम्हें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो व्हेन यू कन्वर्ट सेट बिल्डर फॉर्म टू रोस्टर फॉर्म, एक यूनिक आंसर आएगा। बट अदर वे अराउंड अगर जब करते हैं, कई सारे आंसर पॉसिबल होते हैं। जब रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में करते हैं, तो देयर कुड बी मोर देन वन आंसर ऑल्सो। दिव्या, तुम्हारा कौन सा सिटी है? विच सिटी है फ्रॉम? नोएडा। अच्छा, नोएडा। तो कुड हैव जॉइंड एट साउथ सेंटर। It's 45-50 minutes away on a good day. संडे सैटरडे तो छुट्टी होती है, सब कितने सारे लोग वहां पे आते हैं। आज मॉर्निंग में मेरी वहीं पे क्लास थी। देयर आर मेनी स्टूडेंट फ्रॉम नोएडा। My friend is also doing the offline course. क्या नाम है उसका? Amira. अच्छा, हाँ राइट। वो आई थी आज, फ्रंट रो में बैठी हुई थी। हम्म।
साउथ का अलग बैच है. द गुड़गांव एंड ऑनलाइन इज कंबाइंड. इसमें हाँ ठीक है, सही है, टू नहीं आएगा ना. सही कर, सही किया. जो नहीं हो रहा उसको छोड़ देना, विल डिस्कस. कोड का आंसर तुम क्या लिख रही हो? हम्म. उल्टा कर दिया तुमने, लेस देन है ना वो. If you have any other topic, going on in the class, at school, and you have some kind test kind of thing going on, you can ask me those doubts on WhatsApp and otherwise also phone करके, ठीक है? In a set, repetition of elements and their order is immaterial. ठीक है? Repetition and the order in which elements are written is immaterial, is insignificant. तो elements को तुम्हें repeat नहीं करना है.
हम्म। अच्छा ठीक है। क्वेश्चन 2 में कोई डाउट है? फोर्थ पार्ट और थर्ड, फोर्थ ऑल्सो। दिव्या, क्वेश्चन 2 में कोई डाउट है? Finishing doing again. थर्ड पार्ट कर लिया? ट्वेल्थ? 12th कर लिया। अच्छा, और थर्ड? नहीं, थर्ड नहीं किया। ओके। Third is basically whole number. X is a whole number. And they have given some equation which is x cube minus x is equal to 49. So what we can do is we can substitute whole numbers. X को 0 डालोगे तो क्या आएगा? 0 minus 0, which is not equal to 49. 0 can't be the part of it. X को 1 डालो. 1 minus 1, again not 49. 1 भी नहीं हो सकता. X को 2 substitute किया. 2 cube is 8 minus 2, which is 6, which is not equal to 49. X को 3 substitute करो. Now the question is कहाँ तक जाओगे? 27 minus 3 कितना हो गया? 24, not 49. The moment you substitute 4, the left hand side is coming out to be more than the right hand side. देखो कितना हो गया ये? 64 minus that is 60, which is not equal to 49. But इसके बाद we don't have to substitute anything. Because अब क्या होगा कि as you put 1, 2, 3 and so on, this number on the left hand side increases. So once it has become more than 49, अब क्या होगा? इसके बाद जितने भी numbers तुम लोगे वो 49 से बड़े ही आएंगे. So that means there's no element, no number which will satisfy this equation. इसका मतलब क्या हुआ? ये वाला सेट क्या है? A null set. It's a null set, empty set, void set, कई सारे नाम है इसके. Null set, void set, empty set. जैसे तुम लोगों के कई सारे नाम होते हैं ना. एक घर का नाम होता है, एक स्कूल वाला होता है, एक फ्रेंड्स रख देते हैं. नल, वॉइड और एम्प्टी सेट. और ट्वेल्थ भी नहीं हुआ है. हम्म. देखो पहले समझो मॉड क्या होता है. विल बी स्टडिंग मॉड फंक्शन में काफी डिटेल में, ग्राफ भी करेंगे. मॉड विल बी ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर. दूसरी बात, अगर एक्स पॉजिटिव या जीरो है तो यू कैन रिमूव द मॉड, वही आंसर आ जाएगा. लेकिन अगर एक्स नेगेटिव है, मतलब लेस देन जीरो, तो उसको हमें पॉजिटिव बनाना पड़ेगा. तो पॉजिटिव कैसे बनाओगे? बाय प्लेसिंग नेगेटिव साइन. तो अगर मॉड के अंदर नेगेटिव नंबर है तो उसको पॉजिटिव बनाओगे बाय प्लेसिंग ए नेगेटिव साइन. अगर पॉजिटिव है तो वही आंसर हो जाएगा. ठीक है. अदर वे अराउंड, इफ यू हैव मॉड एक्स इज इक्वल टू से 2, इसका मतलब हुआ एक्स की वैल्यू 2 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है. बिकॉज अगर मैं एक्स को 2 सब्स्टिट्यूट करता हूँ तब भी ये सेटिस्फाई करेगा. इफ आई सब्स्टिट्यूट एक्स को -2, तो -2 का मॉड भी 2 होगा. अनदर वे अराउंड यू कैन से दैट जब भी मॉड हटाएंगे वी कैन ऑलवेज प्लेस प्लस माइनस साइन.
जब भी तुम किसी नंबर से मॉड हटाओगे तो प्लस माइनस लिखोगे। अब क्या था ये क्वेश्चन? दिस क्वेश्चन इज मॉड एक्स लेस लेस देन 2 है ना? कहाँ गया? लेस देन इक्वल टू, ठीक है। तो इफ द क्वेश्चन इज मॉड एक्स इज लेस और इक्वल टू 2, इसका मतलब हुआ एक्स की वैल्यू -2 और 2 के बीच में होगी, कुछ भी हो सकता है वो। दैट इज इट कुड बी -2, -1, 0, 1, 2। दिस इज योर आंसर। ओके, सारे हो गए? थर्ड कर लो अब। कौन सा कर रही हो, ये वाला? हम्म। जेड इज बेसिकली इंटीजर्स। अच्छा, ये वाला कर। तुमने 13 किया है ना अभी? अच्छा, ओके। जेड इज बेसिकली सिंबल फॉर सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं और जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स इज ऑलवेज 0, +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन। आंसर चेक कर लो पीछे एक बार। तुम्हारा हो गया सारे? इसका क्या आंसर है लास्ट वाले का? इसका 14 का? या गुड, ठीक है। इंटीजर बिटवीन -½ एंड 9/2, 0 भी तो आएगा। विषय हो गए सारे? थर्ड क्वेश्चन पे हूँ। अच्छा, थर्ड मैंने यहाँ पे किया हुआ है। कहाँ? नहीं, थर्ड अच्छा। क्वेश्चन। अच्छा, थर्ड वाला कर रही हो ना, ठीक है। सेकंड के आंसर वेरीफाई कर लिए पीछे से असाइनमेंट में? एट द बैक यू हैव आंसर्ड। हाँ। हाँ, मिसप्रिंट है। फिफ्थ वाला ना? हम्म। थर्ड क्वेश्चन में यू बीन गिवन सम काइंड ऑफ रूल। उसमें तुम्हें n को 1 2 3 सब्स्टिट्यूट करके यू गेट फर्स्ट 5 एलिमेंट्स और 4 एलिमेंट्स।
Like in the first one, the rule is an plus 1 is equal to 3 times an. N and n plus 1, they're basically subscript. And you've been given that a1, the first element is 1. तो फिर क्या करूँ, n को 1 डालो इसमें. It would be a2 is equal to 3a1. That means a2 will be 3 into 1, that is 3. Then you can find a3 by substituting n is equal to 2. तो a3 कितना हो जाएगा, 3a2. That is a3 is equal to 3 into 3, which is 9. Then you can substitute n is equal to 3, which is a4 equal to 3a3. That is a4 would be 3 into 9, which is 27. So the set will be 3, 9, 27 and so on. a1 given था तो we found a2. a2 फाइंड करके हमने a3 निकाला. रूल गिवन था. ये सारे सबस्क्रिप्ट है. क्या हम पहला एलिमेंट 1 नहीं लेंगे? क्योंकि नहीं, a1 n को 1 ही तो लिया है हमने. तो अगर A1 तो हमें 1 गिवन है तो फिर हाँ, तो वही तो यूज किया है. n को अगर 1 लोगे तो a2 आएगा लेफ्ट साइड में, n प्लस 1. अच्छा हाँ ठीक है। क्या बोल रही हो? हम्म. हाँ, n इज बेसिकली द एलिमेंट ऑफ द सेट. हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है a1, a2, a3 एंड सो ऑन. ये था. तो 1 ही हो गया. 1 हो गया. हाँ, तो 1. अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, आई मिस्ड आउट 1. विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 1. So 1, 3, 9, 27 and so. क्या हुआ, नहीं किया ये? हाँ, बी वाला करो. देखो इसमें दे रखा है तो मैं an+2 इज an+1 प्लस an. लिखो एक बार इसको. हमने 1 को वापस क्यों इंक्लूड कर लिया किसमें? इसमें? Because the rule says an+1 is 3 times an. So when Yeah, I write n is equal to 1, I get a2. yeah. a2 is 3 times a1. So it's 3 now. I हाँ, तो 3 हो गया ना. a2 is 3. तो if it is an+1 then would we start with A1 or A2? See, we already have a1 equal to 1. We want now a2. a2 कैसे आएगा? Ask yourself, a2 कैसे आएगा? इसमें n को क्या डालने ताकि a2 बन जाए ये? 1 डालें। फिर वही किया हमने. हम्म. अब इसमें क्या हो रहा है? दिस इज द रूल. और क्या गिवन है हमें? a1 a2 दोनों 1 दे रखे हैं तुम्हें. a1 की वैल्यू दे रखी है 1 और a2 की वैल्यू भी 1 दे रखी है. देखो यहाँ पे, ठीक है. सो अब हमें क्या a3 चाहिए. a3 कैसे आएगा? व्हेन आई सब्स्टिट्यूट n इज इक्वल टू 1 हियर. दिस वुड बी a3. ठीक है. n+1 is a2. 1 plus 1 is 2 and this is a1. So what will be a3? Then n को 2 डालो. 2 plus 1, that is a3 is, a2 is. So find 2 more elements. This sequence, पता है इसका नाम क्या है? Yes. It was basically discovered by some Indian long ago, 1,000 years ago. But then that book was stolen by somebody and he named it Fibonacci. दिशा, हो गया सेकंड वाला तुम्हारा? हम्म. Yes, क्या रहा आंसर? 1 1
2, 3, 5, 8. राइट, दिस फिबोनाची सीरीज। इसमें क्या होता है, द नेक्स्ट नंबर इज बेसिकली सम ऑफ द प्रीसीडिंग टू नंबर्स। जैसे इन दोनों को ऐड करोगे 2 आएगा, इनको ऐड करोगे 3 आएगा, इनको ऐड किया 5 आएगा, इनको ऐड किया 8 आएगा। और इसमें एक और चीज होती है, हैव यू हर्ड अबाउट गोल्डन रेशो? क्या होता है? हाँ, तो 1.6 के आसपास होता है वो। तो इसमें अप्रोक्सीमेटली गोल्डन रेशियो भी फॉलो होता है। 3/2 कितना हो गया? 5/3, 1.66 है ना? 8/5 वो भी। तो इट ऑल्सो obeys that to some extent। क्वेश्चन 4 कर लो अब। 4 में यू माइट गेट मोर देन वन आंसर, बिकॉज किसी भी रोस्टर फॉर्म को जब तुम सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, कई सारे आंसर आ सकते हैं। ठीक है, तो नॉट नेसेसरी जो पीछे आंसर दिया वही आएगा, जो नहीं होगा उसको मैं कर लूंगा। तुम जो हो रहा है उसको करते जाओ पहले। क्या हुआ, कौन सा वाला? 4 9, 4 is 2 square, 3 square, 4 square। जैसे इसका सेकंड क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन का तुम लोगों ने क्या आंसर लिखा? हम्म, तुम बताओ। तुमने क्या लिखा सेकंड? हाँ, x z x, x प्राइम नंबर, आगे। ओके, अब इसी को हम डिफरेंट वे में भी लिख सकते हैं। तुम बताओ तुमने क्या लिखा, अद्विका? अच्छा, ये नहीं छोड़ दिया था ये? अच्छा, ये भी हो सकता है, x इज एन ऑड नंबर बिटवीन, आई कैन से 16 and 20, ये भी लिख सकता हूँ मैं। 16 और 20 के बीच में ऑड नंबर क्या आता है? 17 19। कुछ और भी कर सकते हो। x says that x is a prime number between 15 and 21। 21 15 के बीच के प्राइम नंबर कौन से हुए? 7 19। तो मतलब सेट, जब भी रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो कुड बी मल्टीपल आंसर्स, बट सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में एक यूनिक ही आंसर आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता।
ठीक कर रही हो, परफेक्ट। बिकॉज जब मॉड हटाओगे तो प्लस माइनस टू आ जाएगा ना। नहीं नहीं, यू सिंपली दिस ओनली, अब मॉड जब हटेगा तो प्लस माइनस टू आ जाएगा अपने आप से। दिव्या, फोर्थ का आंसर क्या किया? द फाइव वाला क्वेश्चन। नहीं, मॉड वो वाला प्लस माइनस टू वाला। अच्छा, एक सेकेंड। कौन सा फोर्थ है ना वो, एक अद्विका? सेकेंड। मॉड एक्स इज इक्वल टू टू। राइट, और इसके अलावा कुछ और हो सकता है इसका आंसर, सोचो। मॉड एक्स इक्वल टू तो आ गया, इसके अलावा कुछ और सृष्टि बताना। यस, वेरी गुड। x such that x square minus 4 equal to 0 will also give the same answer. एक और चीज यहाँ पे, इफ आई राइट x is equal to रूट फोर, तो इसका आंसर क्या होगा? हम्म, पक्का? दिव्या, अगर मैं लिखता हूँ x is equal to रूट फोर, विल इट बी प्लस टू और प्लस माइनस टू और माइनस टू? प्लस टू। अद्विका तुम बताओ, x is equal to रूट फोर का आंसर क्या होगा? प्लस माइनस टू? नो, इट विल बी ओनली फोर, प्लस माइनस टू, सॉरी ओनली टू, नॉट माइनस टू। उसका रीजन क्या है, समझ समझ लेते हैं। अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर होगा, देन आई राइट दिस एज एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट फोर। मतलब दो आंसर आ रहे हैं, एक आ रहा है रूट फोर जो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होगा, दूसरा आंसर आएगा माइनस ऑफ रूट फोर विच विल बी माइनस टू। ठीक है, ये रिजल्ट याद कर लेना। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। प्लस माइनस क्यों आ रहा है? बिकॉज जब तुमने एक्स स्क्वायर माइनस फोर को फैक्टराइज किया, एक फैक्टर एक्स माइनस टू, दूसरा फैक्टर एक्स प्लस टू, तो दैट्स वाई प्लस माइनस टू वाज द आंसर हियर। इसमें प्लस माइनस इसलिए आ रहा है, प्लस रूट फोर विल बी ऑलवेज टू, माइनस ऑफ रूट फोर वुड बी माइनस टू। तो एक तरीका ये भी हो सकता था। ठीक है। अदरवाइज तुम इसको क्या बोल सकते हो, इवन नंबर भी तो लिख सकती हो। ये कौन सा वाला है? टेंथ? अच्छा, तो इसको सेट ऑफ इंटीजर नहीं लिख सकते तुम? यू कैन ऑल्सो कॉल इट सेट ऑफ इंटीजर्स, x such that x is an integer, that is, it is 0 plus minus 1 plus minus 2 and so on. ठीक है। दिव्या कहाँ तक हो गए? Yeah, विच क्वेश्चन? I've done till fourth question. ओके, फोर्थ के सारे पार्ट हो गए। हाँ, उसकी नंबरिंग थोड़ी गलत थी। हाँ, नंबरिंग में कुछ आगे पीछे हो रहा है, कोई बात नहीं। एक बार वेरीफाई कर लो आंसर।
हम्म दिस इज 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, है ना? तो कैसे लिखोगे इसको? नहीं, दूसरे ऐसे भी कर सकते हो, दिखाओ। x such that x is n cube, where n is, है ना? आ गया वही। कौन सा क्वेश्चन था वो? कौन सा पार्ट था? अद्विक का कौन सा क्वेश्चन था वो क्यूब वाला? हम्म 8th वाले में आई डिड लाइक दिस, x such that x is equal to n cube, n is natural number। 8th मैंने ऐसे किया, देख लो। कई सारे आंसर पॉसिबल है, ठीक है, ये भी हो सकता है। तुम लोगों का रिजल्ट कब आ रहा है, एनी आइडिया? दिस वीक ओनली? पहले 10th का आता है, 12th का आता है? 10th, 12th? डू यू नो हर्षिता? शी वाज इन 12th। शी वाज बी आर्क स्टूडेंट फ्रॉम योर स्कूल ओनली। हर्षिता गुप्ता। कौन सा कर रहा हूँ ये सेट ऑफ इंटीजर लिख दिया ना सीधा सीधा। सेट ऑफ इंटीजर हो गया ना ये तो। दिवसा हो गए सारे? अब एक काम करो, नल सेट के दो एग्जाम्पल बनाओ। फॉर ए नल सेट, राइट 2 एग्जाम्पल। सब लोग करेंगे, ठीक है? इसको फिनिश करने के बाद पहले ये खत्म कर लो, फिर नल सेट के दो एग्जाम्पल बनाओ ना, सेट बिल्डर फॉर्म में। क्योंकि रोस्टर फॉर्म तो एक ही हुआ नल सेट का। हो गया। हो गया? क्या लिखा है बताओ, नल सेट का एग्जाम्पल। X such that X is a natural number and X is less than 1. ओके, बिकॉज नल सेट का रोस्टर फॉर्म में एक ही आंसर है ना। Hmm. एक्स सच दैट एक्स इज, Natural number हाँ, and X is less than 1. राइट। तो 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, सो नल सेट। और दूसरा एग्जाम्पल? X such that X square plus 2 is equal to 0 and X belongs to a real number. एक्स सच दैट एक्स इज अ रियल नंबर, आगे बोलो। X square plus 2 is equal to 0. ओके,
ठीक है, परफेक्ट, दोनों नल सेट हैं। अद्विका तुम बताओ। एक्स इज ऑड मल्टीपल ऑफ टू, क्या हुआ, है ना? एक्स सच दैट एक्स इज, हाँ ठीक है। और बताओ। there could be infinite possibility। हाँ, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ ना वो। एक्स एक्स परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए ना। और क्या हो सकता है, बहुत सारे बना सकते हो मन से ही। एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर एंड एक्स लाइज बिटवीन 1 and 0। x such that x is a person whose height is 12 feet। You can make so many example, but ये सारी रोस्टर फॉर्म है। इन सब का एक ही, सॉरी, ये सारी सेट बिल्डर फॉर्म है, इनका एक ही रोस्टर फॉर्म होता है। तो रोस्टर फॉर्म एक यूनिक होगा, जबकि सेट बिल्डर फॉर्म कई सारे बन सकते हैं। सारे हो गए? अद्विका तुम्हारे भी हो गए, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। दिस अ टर्म कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट की डेफिनेशन को पहले, इट इज, cardinal number of a set is number of number of distinct elements, number of distinct elements in a set. Number of distinct elements in a set is called cardinal number। जैसे मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा था, एक सेट लिखा था, क्या हो गया है? So this was a set, cardinal number of a set A, I'll write like this। n of A का मतलब क्या हुआ? Cardinal number of set A। And x is a vowel, how many vowels are there? 5। So n of A would be 5। What about this? n का कार्डिनल नंबर क्या होगा? n of n का, इट्स a set of natural numbers not defined or infinity। So किसी भी सेट के कार्डिनल नंबर को लिखोगे n of that set। It could be a finite number, it could be something which is not defined or infinity। So when cardinal number of a set is a finite number, it's called a finite set। अब हम बात करें finite और infinite set की। A set can also be categorized as finite set or infinite set। So what is a finite set? When cardinal number of a set is a finite number, it would be a finite set। And if cardinal number of a set is not defined, it is called infinite set। When cardinal number of a set is not defined, it is called infinite set। So set of whole numbers क्या होगा, finite और infinite? Infinite। Set of integers, वो भी infinite होगा। If I ask you set of all animals in the world, no, it'll be finite, even though it's difficult to count them, but it'll be finite। ठीक है? Number of human beings on the earth, again finite, though it's difficult to count them, but you know the total population of the world।
सो इसे फाइनाइट सेट। अब क्वेश्चन नंबर 5 कर लो, ठीक है। क्वेश्चन 5 आई थिंक इट्स बेस्ड ऑन फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट ओनली। हम्म, ये मेरे ख्याल से होना चाहिए 1 इज लेस देन एक्स एंड एक्स इज मोर देन, दिखाओ। शुड बी समथिंग लाइक दिस। 1 लेस देन एक्स एंड एक्स इज मोर देन 500, है ना? ऐसा होना चाहिए था। हो गए सारे? सेकंड का क्या आंसर कर किया तुमने? क्यों? 1 और 5 के बीच में कितने रियल नंबर्स हैं, है ना? विल बी इनफाइनाइट। अगर नेचुरल नंबर होता तो फाइनाइट होता आंसर। क्या? मेरा ना हाँ दूसरा बोलो। मेरा ना हो गया, बट मैंने आंसर चेक किया तो दो मैच नहीं हो रहे। कोई बात नहीं, आंसर चेंज कर दो। जैसे मैंने सेकंड इन सेकंड का आंसर इनफाइनाइट है। उन्होंने फाइनाइट दिया है वो एंड गलत है पीछे। इट सिंस इज रियल नंबर बिटवीन एनी टू क्लोजेस्ट रियल नंबर विल बी इनफाइनाइट इन रियल नंबर्स। तो इसका आंसर इनफाइनाइट होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली सिक्स्थ वाले का भी मैंने इनफाइनाइट लिखा है और उन्होंने फाइनाइट दिया बहुत नाइंसाफी है। एक्स है। रियल रियल नंबर है तो तो अगर ये नेचुरल होता तो फाइनाइट होता, ठीक है। मिस प्रिंट था वो। सो विल बी इनफाइनाइट। अद्विका 6 का आंसर क्या है? हाँ, बिकॉज आर इज अ रियल सेट ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन एनी टू क्लोजेस्ट रियल नंबर विल बी इनफाइनाइट रियल नंबर्स। परफेक्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स तुम्हारा हो गया। टू और मोर सेट्स, टू और मोर सेट्स आर said to be equivalent
two or more sets are said to be equivalent if they have same cardinal number. बात समझ में आ गई? So two or more sets are said to be equivalent if they have same cardinal number. दिशा बोर्ड नजर आ रहा है? बोर्ड पे लिखा हुआ? बस हाँ, हाँ हाँ। ठीक है, ऑल राइट। अब मैं कुछ सेट्स लिख रहा हूँ, तो तुम्हें आइडेंटिफाई करके बताना होगा कौन से सेट्स इक्विवेलेंट है, ठीक है? डेफिनेशन में तुम्हें बता दी है। जितने भी सेट्स बोर्ड्स पे लिखे हुए हैं उनमें से कौन कौन से इक्विवेलेंट है उनका ग्रुपिंग कर लो। कौन सा? हाँ, मैंने लिख दिया है, बट यू यू बेसिकली फिगर आउट कि रेपिटेशन तो मीनिंगलेस होता है, ठीक है? इन सभी सेट्स में से आइडेंटिफाई विच टू और मोर सेट्स आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट की डेफिनेशन में ऑलरेडी मालूम है, दो सेट्स विच हैव सेम कार्डिनल नंबर आर कॉल्ड इक्विवेलेंट। जो इक्विवेलेंट की ग्रुपिंग बना लो, ठीक है? वन पॉइंट वन। हाँ वो अद्विका हो गया तुम्हारा, एक सेट बन गया। कोई बात नहीं, बोर्ड पे आके लिखो एक ग्रुप, और उनका कार्डिनल नंबर भी बताना कितना है, ठीक है? जो तुम आंसर लिख रही हो उसका कार्डिनल नंबर भी बता देना। आओ। हाँ, यहाँ यहाँ लिख दो, ठीक है? नहीं, तुम सेट के नाम लिख दो ना सिर्फ। नहीं, ऐसे रेज नहीं होगा, इसको पाम से करो या तो यू राइट ओनली द नेम ऑफ सेट्स। कौन कौन से सेट्स तुम्हारे? हाँ, जो इक्विवेलेंट है, नॉट इक्वल। वाई लिखो, हाँ लिखो वाई। और और
तुम सेट क्यों लिख रही हो? सी तुम्हारा एक, तुम्हारा वाई बताना चाह रही हो तुम, वाई लिख दिया मैंने, और कौन सा है? ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है। ई, ई है। इन सब का कार्डिनल कितना है? 5। हम्म। और कौन से सेट लिख दो सारे? सेट, सेट का नाम लिखो, पूरा सेट नहीं लिखना है। यू डोंट हैव टू राइट द नेम ऑफ सेट। कौन से और सेट हैं जिनका कार्डिनल नंबर 5 है? लिखो, ऊपर एच लिख दो, ई के बाद एच लिखो। राइट, और नहीं है, यही है, ठीक है। दुष्या तुम बताओ, 5 कार्डिनल नंबर वाले कौन कौन से सेट्स है? यही है सारे? Y और E, हाँ। ए, और हाँ ठीक है, तो एक आंसर तो ये आ गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट तुम बताओ, लिखो, चलो बोर्ड पे लिखो, इसके नीचे लिख दो, और उसका कार्डिनल नंबर भी लिखना है। राइट देयर, वहाँ लिख दो। हाँ, ओके, और कौन सा आ सकता है इसमें? अद्विका, इसमें कुछ और आएगा इनफाइनाइट वाले में? दिवसा आएगा? जरा बोर्ड पे ढंग से देखो गौर से। G और W है। बस, क्या बात कर रहे हो? इतनी जोर से लिखा हुआ है नहीं यहाँ पे? एन नहीं लिखा हुआ? फिर वो भी तो है। अच्छा ठीक है, वो सारे हैं। मैंने तभी तो उसको ऊपर किया था। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, even though all these have same cardinal number, but they are not said to be equivalent, because infinity is something which is not defined. इसीलिए उनको इक्वल नहीं माना जाएगा। दो, टू इनफाइनाइट थिंग्स के नॉट बी इक्वल, तो दैट इज वाई दे वोंट बी इक्विवेलेंट। तो इन्फिनिटी वाले को हम इक्विवेलेंट नहीं लेंगे, बिकॉज उनका कार्डिनल नंबर डिफाइंड ही नहीं है। और क्या है इसके अलावा बताओ? सारे सेट्स लेने थे, ऑल द सेट्स रिटन ऑन द बोर्ड। यू हैव टू कंसिडर ऑल द सेट्स रिटन ऑन द बोर्ड। नजर आ रहे हैं दिव्या, सारे सेट्स? फिर तो Q भी आ जाएगा इन 5 वाले कार्डिनल नंबर्स। हाँ वही ना, क्यू है और पी भी है। हम्म। इन सब का कार्डिनल नंबर 5 है ना? और ए भी तो आ गया, ए भी आ गया, और बी भी आ गया। लुक एट बी, ऑल दीज आर इक्विवेलेंट। और कुछ और है? कोई दूसरा सेट बताओ, एनी अदर्स सेट्स विच आर इक्विवेलेंट? यस, नल का मतलब है उसका कार्डिनल नंबर 0 है। एनी सेट विच इज हैविंग कार्डिनल नंबर 0 इज ए नल सेट। तो कौन सा नल सेट है? सी नल सेट था, और डी, दिस, सी, सी तो ये हो ही चुका है। और कोई नल सेट नहीं था? कौन सा? नहीं, इट्स नॉट ए नल सेट, दिस इज नॉट ए नल सेट। बताओ मुझे, जेड का कार्डिनल नंबर बताओ। 1। एक्स का कार्डिनल बताओ। यस, तो जेड का कार्डिनल नंबर भी 1 है, और एक्स का कार्डिनल नंबर भी 1 है। दे आर इक्विवेलेंट। और कोई है जिसका कार्डिनल नंबर 1 है? नहीं, तो इन दोनों का कार्डिनल नंबर 1 था। कौन सा? एच में, हाँ एच नहीं होगा। चलो, तुमने फिगर आउट कर लिया, ठीक है। एच का कार्डिनल नंबर कितना है? व्हाट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ एच? 1, 2, 3, है ना? सो नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट आर इक्विवेलेंट सेट्स। नेक्स्ट लिखो, इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स, टू और मोर सेट्स
two or more sets which have same cardinal number, and same set of elements. Same cardinal number and same set of elements are called equal sets. अब जरा बोर्ड पे नजर डालो. Consider all the sets written on the board. Tell me which sets are equal sets. Q and okay, set of vowels, वो भी vowel है, वो भी vowel. और equal sets में आ गया Q and A. एक तो ये हो गया. और तुम क्या बोल रही हो अद्विका? P and Y. हम्म. B 1 2 3 4 5 हो गया. Y is also 1 2 3 4 5 and E where is E? अच्छा, नहीं, इसमें 5 इंक्लूड नहीं होगा ना. हाँ, ये नहीं होगा. सो इट विल बी Y and B. These two are also equal sets, है ना? और कुछ लग रहा है equal sets? Disha? Now, can I say that all equal sets are equivalent? Equal sets are always equivalent. What about vice versa? लिख लो. Equal sets are always equivalent. Equal sets are always equivalent, but vice versa will not be true. दिखाना. तो अब तुम लोग एक काम करोगे. आज की क्लास तो अभी खत्म होने वाली है. क्वेश्चन 6, 7, 8, नहीं 7 के दो पार्ट है, एंड भी 6 and 7 घर से करके लाना, ठीक है? सो आई सी यू ऑन ट्यूसडे ना हमारी क्लास अब. ठीक है. सो दिव्या, ट्यूसडे टाइम टाइम क्या है हमारा? थोड़ा ट्यूसडे का टाइम मेरे ख्याल से 5 to देख लेना, तुम टाइम देख लेना. सेम टाइम होगा या थोड़ा आगे होगा, 15 मिनट आगे है शायद. सो आई एम एंडिंग द क्लास. सी यू नेक्स्ट टाइम. Q. बाय.